Yes, hello everyone, this is Nivedita Singh and I heartily welcome you all in the series of factorization. So there will be overall 4 series of factorization. So please don't miss any of them because this is specially for class 9 students, but it will be helpful for class 10th as well. So please watch the videos, all the 4 ones, okay? And give it a thumbs up if you like this. So let's start the video. Yes students, now in this session first we will start with that is the definition of factorization. What is factorization? So factorization is a process of writing an expression in the form of product of 2 or more expressions. Okay, means there will be 2 or more expressions and they will be written in the form of a product. I'll show you some example. For example, the number is 4x squared minus 25y squared. Okay, now this number can be written as, this expression can be written as 2x whole squared minus 5y whole squared. Now here this is in the form of a square minus b squared. So it can further be expanded as a plus b into a minus b. So we will write it as 2x plus 5y into 2x minus 5y. So this is the way how you can write an expression. Okay, how you can write an expression in the form of products. So this is only known as factorization. Yes student, in this series, the first thing we have to understand is methods of factorization. See, factorization solve करने के कुछ methods है. The first method is taking out common. Taking out common means you have to take out common. Common means क्या होता है कि अगर कुछ दोनों में same है, तो what is the similar between any two expressions? कोई भी दो expression के बीच में similar क्या है, उस चीज को आपको common निकालना है. Okay, that is only the method of taking out common. So here in this two expression, just think, okay, कि यहाँ पे क्या दो चीजें हैं या फिर क्या 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 चीजें हैं यहाँ पे जो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो. Now see in the first one, यहाँ पे x cube है और यहाँ पे क्या है x square. So क्या हम x cube and x square से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं? Yes, we can. What we can? We can take out x square as common. क्यों? क्योंकि दोनों के पास x square है. Now next what you can do is, अब देखिए यहाँ पे 2x minus 3y यहाँ पे भी है and 2x minus 3y यहाँ पे भी है. But यहाँ पे कितना टाइम से ये 2x minus 3y? Only one time. और यहाँ पे कितना टाइम से it is? 2 times. Okay? तो एक 2x minus 3y को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं. तो we will write here 2x minus 3y. Okay? Now see, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाते हैं, बिगर ब्रैकेट, और यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में, ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, इसमें क्या चीज रिमेनिंग है. रिमेनिंग मतलब इसमें से जो बाहर निकालिए, जो चीज कॉमन निकालिए, उसमें से क्या हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है. तो यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाले पर इसके पास एक एक्स अभी भी बचा हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू विल राइट हियर एक्स. ओके, नेक्स्ट इसका सारा चीज निकल गया. यहाँ पे 2x minus 3y भी फिनिश हो गया. ओके, ये भी कॉमन आ गया. यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन आना चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट अगर साइन माइनस है तो यहाँ पे साइन माइनस पुट करेंगे. एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, पर यहाँ पे एक चीज बाहर नहीं आया. क्या? 2x minus 3y. दिस वॉज 2 times, ये 2 बार था, पर हमने सिर्फ कितनी बार निकाला है इसको कॉमन? सिर्फ हमने एक बार कॉमन निकाला है. एक बार में भी अभी ये बचा हुआ है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे 2x minus 3y. Okay. Now next step what you will do, you have to add one more step to this. You have to write here x square into 2x minus 3y into, अब देखिए यहाँ पे this will be x, ये जो माइनस है, ये माइनस क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. माइनस इंटू प्लस, you will get how much? minus 2x. Minus into minus, you will get how much? plus 3y. So this is the final answer which you will get after doing the factorization process of first method, that is taking out common. Okay, so this is the answer. I hope you have understood this one. I'll take more examples to explain this. Okay. Yes student. So now this is question number 2 and of the type, that is type 1, taking out common method. Okay. So now in this question just see it properly. यहाँ पे हमारे पास कितना एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है. एक ये वाला एक्सप्रेशन है एंड सेकेंड एक्सप्रेशन ये है जो 6 इंटू 2x minus 5y into x minus y, ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है. Now in these two expressions, इस दोनों एक्सप्रेशन में आपको बताना है
कि क्या सारी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 2 है। तो नाउ टेल मी दैट यहाँ पे कहीं 2 है या नहीं है, इज इट देयर और नॉट? यस इट इज देयर। वेयर इट इज? इट इज इन द प्लेस ऑफ 6। कैसे? 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट एज 2 into 3? इफ वी राइट इट एज 2 into 3 दैट मीन्स इसके पास 2 तो है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 को बाहर निकाल देंगे, मतलब 2 को कॉमन ले लेंगे। ना यहाँ पे 2x minus 5y, क्या 2x minus 5y इसके पास भी है, सेकेंड एक्सप्रेशन के पास यस है, तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी लिखेंगे 2x minus 5y। ओके क्या हमें और कुछ कॉमन मिल रहा है इन दोनों एक्सप्रेशन में? नहीं, अब हमें कुछ और कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में रिमेनिंग क्या है, कौन कौन सा वैल्यूज जो है वो रिमेनिंग है। यहाँ 2 तो बाहर निकाल दिए, मतलब कॉमन ले लिए, 2x minus 5y भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग इज 3x plus 4y। ओके नाउ इन द सेकेंड वन, इसमें क्या रिमेनिंग है हमारे पास, यहाँ से अगर 2 बाहर कॉमन निकाल लिए थे तो फिर यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा 3, और यहाँ पे 2x minus 5y जब हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा हमारे पास, x minus y, तो यहाँ पे बचा हमारा 3 into x minus y। ओके बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर, व्हाट यू हैव टू डू हियर नेक्स्ट। यहाँ पे जब भी ये चीज प्रोडक्ट में, तो हम लोग इसको कभी भी टच नहीं करेंगे। ओके प्रोडक्ट में ही हमें आंसर लिखना है, बिकॉज फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि हमें आंसर हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखना है। नाउ सी ये जो है, इस पोर्शन को हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3x plus 4y माइनस ये 3 into x कितना होगा, माइनस 3x, माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस 3y। ओके 3 into y दैट इज 3y। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये प्लस है और ये माइनस है। ये वाला 4y प्लस 3y, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको यहाँ आंसर लिखिए 2 into 2x minus 5y into हाउ मच, यहाँ पे इस ब्रैकेट में कितना लिखाएगा, 4y plus 3y। ओके ये हुआ हमारा, तो 4y plus 3y कितना होता है, दैट इज 7y। तो यहाँ पे फाइनली आंसर जो हम लोग को मिलता है वो होता है 2x minus 5y into 7y। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब समझ में आया कि कैसे कॉमन लेना है और कैसे रिमेनिंग को Yes students, so now in this, after completing the type 1 method of factorization, we will study the type 2 method of factorization. The name of the factorization, the method name is grouping. Okay, grouping. The word itself defines that grouping का मतलब क्या होता है। कभी क्या एक इंसान ग्रुप बनाता है, नहीं, ग्रुप हमेशा 2 या 2 से ज्यादा का बनता है। ओके तुम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा ग्रुप फॉर्म करना है जिसमें से सेम टाइप ऑफ कॉमन फैक्टर हमें निकले। ओके ऐसा ग्रुप हमें बनाना है जिसमें से सेम टाइप ऑफ कॉमन फैक्टर हमें निकले। नाउ इफ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, a to the power 4 minus 2a cube minus 4a plus 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दो ऐसा नंबर्स, दो ऐसे एक्सप्रेशंस लेंगे, सो दैट इनका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सेम फैक्टर्स आएगा। सी आई विल शो यू। मान लेते हैं कि इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं। ओके तो इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलेगा, यू विल गेट हियर a क्यूब, क्योंकि a क्यूब इसके पास भी है और a क्यूब इसके पास भी है, और कुछ भी सेम नहीं है। नाउ रिमेनिंग क्या बचा इसके पास बचा सिर्फ और सिर्फ a, क्योंकि इसके पास कितना था, a का पावर 4, दैट मीन्स a कितना था इसके पास, 4 a's। तो यहाँ पे एक a, जब तीन a कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, 1a बच गया, तो यहाँ पे बचा a और यहाँ पे बचा 2। ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 4a प्लस 8 माइनस 4a प्लस 8, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या इसके पास 4 तो है, पर क्या इसके पास 4 है, यस इट इज देयर, बिकॉज 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 into 2। ओके तो इसके पास भी 4 है। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे हम लोग +4 लिखेंगे या -4 लिखेंगे, यहाँ पे -4 होगा या +4 होगा। सी यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा। क्यों -4 होगा, आई विल शो यू। अगर यहाँ पे -4 लिखते हैं तो यहाँ पे कितना बचता है, रिमेनिंग में कितना आता है, यहाँ पे क्या बचता है a, और यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ बचता है -2।
न कि +2। -2 क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ओके, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कभी भी कॉमन लेते हैं तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे a-2 हम लोग को मिला, यहाँ पे भी a-2 हम लोगों को मिल गया। तो हमें इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कि यहाँ पे दोनों के पास सेम कॉमन फैक्टर हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स ग्रुप इज नॉट करेक्ट। ओके, दैट मीन्स हमारा जो ग्रुपिंग किया हुआ है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुपिंग अब सही है, दोनों के पास सेम कॉमन फैक्टर आ गया। तो नेक्स्ट व्हाट यू विल राइट हियर, यहाँ लिखेंगे नाउ सी, यहाँ पे फिर से कितना एक्सप्रेशन है? 2 एक्सप्रेशन है। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। यहाँ पे कितना एक्सप्रेशन था? 4 एक्सप्रेशन था। ओके, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है। तो नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? a-2। ओके, और यहाँ पे क्या बचा? a³ -4। सो दिस इज द फाइनल आंसर, नो फर्दर स्टेप्स। ओके, yes students, now let us take the another question. The question is y² minus a plus b into y plus ab. Okay, now in this question यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितना टर्म्स है? अभी दिख रहा है आपको कितना एक्सप्रेशंस दिख रहा है? देयर आर ओनली 3 टर्म्स। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म ही यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो हमें तो ग्रुपिंग करने के लिए 2 टर्म चाहिए या फिर 2 से ज्यादा टर्म चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड करेंगे। नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, यहाँ पे लिखिए y² माइनस ay माइनस by प्लस ab। यहाँ माइनस माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या था? माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस। ओके, अब क्या करते हैं? अब हमें ग्रुपिंग करना है। ओके, तो ग्रुपिंग में यहाँ पे y² माइनस ay मान लेते हैं कि इन दोनों का ग्रुप कर रहे हैं पहले। ठीक है, इन दोनों का जब ग्रुप कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे इन दोनों के पास क्या कॉमन है? y। तो यहाँ पे क्या बचा? रिमेनिंग में यहाँ पे क्या बचा? दैट इज y माइनस इसके पास बचा a। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक आउट कितना? b या माइनस b? वी कैन टेक आउट b या माइनस b। यहाँ पे हम लोग माइनस b अगर मान लेते हैं कि माइनस b लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे बचता है y माइनस a। ओके, यहाँ पे क्या बचता है? y माइनस a। मतलब ये दोनों फैक्टर्स क्या आ गया? सेम आ गया। तो हमेशा ऐसा ग्रुपिंग हम लोग को करना है कि हमारा जो फैक्टर्स ले रहे हैं वो दोनों कॉमन फैक्टर्स सेम आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब ये 2 एक्सप्रेशन हो गया, इसमें से अब अगेन y माइनस a एंड y माइनस a कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचा y माइनस a और इधर क्या हुआ? इधर बचा y माइनस b। सो दिस इज द आंसर। ये वाला y, यहाँ पे y ये इसका है फर्स्ट एक्सप्रेशन का और b किसका है? सेकेंड एक्सप्रेशन का। ओके, सो नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट प्रोडक्ट के फॉर्म में है और यहाँ पे कितना एक्सप्रेशन है? 2 एक्सप्रेशंस है। सो दिस इज द आंसर। यस स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन है a² प्लस b माइनस ab माइनस a। ओके, नाउ यहाँ पे फिर से हमें ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि a² प्लस b मान लेते हैं इन दोनों का ग्रुप करते हैं, इन दोनों का। तो क्या इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? नो, देयर इज नथिंग, नो कॉमन है भैया, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा हम लोग कोई नंबर लेंगे कि जिसमें से हम लोग कुछ कॉमन मिले। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको और इसको लेते हैं, मतलब a² को एंड माइनस ab को लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ a² माइनस ab और ये वाला जो प्लस b है उसको यहाँ पे लिख देते हैं प्लस b माइनस a। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? यस, एक कॉमन है। क्या कॉमन है? a। और यहाँ पे क्या बचा? a माइनस b। नाउ सी, यहाँ पे क्या आया? a माइनस b। अब ये b माइनस a, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? अगेन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर यू हैव टू राइट हियर, यहाँ लिखना पड़ेगा -1। -1 क्यों? अगर किसी में से भी कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है दैट मीन्स हम लोग 1 कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ जब 1 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ 1 के साथ माइनस इसलिए लिखे बिकॉज आई एम शोइंग यू। सी, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे हमें बचा माइनस b। माइनस b क्यों बचा? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। और हम लोग को यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ b के साथ कौन सा साइन चाहिए? माइनस साइन। माइनस साइन चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिखा। ओके, अगर यहाँ पे +1 लिखते हैं, यहाँ पे +1 लिख देते हैं
तो क्या यहाँ पे माइनस बी होता? नहीं, यहाँ पे तो फिर प्लस बी हो जाता, तब तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग को सेम रखने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी को कॉमन लेंगे, सॉरी -1 को कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा -b और यहाँ क्या बचेगा, +a, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -a। नाउ यहाँ पे भी a -b के फॉर्म में और यहाँ पे भी a -b के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब a -b को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचा, a -1। सो दिस इज द आंसर। Okay, now let us take one more question, children. Yes, children. Now let us take the another question. यहाँ पे question क्या है? Question है x into 6x minus 5y minus 4 into 6x minus 5y का whole square. Now यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग के लिए हमेशा हमें दो या दो से ज्यादा टर्म चाहिए, पर यहाँ तो सिर्फ दो टर्म है, तो सिर्फ दो टर्म का ग्रुपिंग कैसे करें, इसमें से क्या कॉमन निकाले हम? तो फर्स्ट क्या करना है, इसमें से हम लोग कोई भी दो पेयर नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि किसका पेयर आप फॉर्म करोगे, ये तो ऑलरेडी एक पेयर है और किसी कोई यहाँ पे और कोई एक्सप्रेशन तो है नहीं जिसका पेयर फॉर्म करेंगे हम लोग। यहाँ सिर्फ दो एक्सप्रेशन, एक ये और एक ये। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस दोनों से कॉमन लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड में क्या पड़ेगी, वी हैव टू टेक कॉमन, हमेशा कॉमन लेना है। तो जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यू कैन टेक हियर 6x minus 5y। ओके, क्योंकि इसके पास भी 6x minus 5y और इसके पास भी 6x minus 5y है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग इज x, और सेकेंड में यहाँ पे क्या बचता है, -4 into 6x minus 5y। ओके, ये यहाँ पे ये रिमेनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x minus 5y एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो x -4 into 6 कितना होता है, 24। तो यहाँ पे होगा 24x माइनस इंटू माइनस कितना होता है, +20y, 5 4 20 इंटू y 20y। तो फाइनली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों x सॉल्व होगा, कितना आएगा, -23। ओके, तो यहाँ पे होगा 6x minus 5y इंटू -23x प्लस 20y। सो और फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा और यही हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ओके, तो इसमें कोई भी ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं था। तो कभी भी हमारे पास सिर्फ अगर दो एक्सप्रेशन रहते हैं तो उसमें ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें ग्रुपिंग तब करना होता है जब हमारे पास 4 एक्सप्रेशन हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तभी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। दो एक्सप्रेशन में कभी भी ग्रुपिंग नहीं करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन चिल्ड्रन। Yes friends, now let us take one more question. यहाँ पे क्वेश्चन है a square plus 1/a square minus 2 minus 3a plus 3/a. Now in this question थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, क्या इसमें से ऐसा कोई भी टर्म है जो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आपको टर्म दिख रहा है जिसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं? यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ट्रिकी है, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट। ओके, हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पे आप अपना पास्ट याद कीजिए, पास्ट में क्लास 6, 7, 8 जो भी आपने पढ़ा था, वहां पे आपने क्या पढ़ा था, यू हैव रेड वन एक्सप्रेशन दैट इज a minus b होल स्क्वायर। तो आपने a minus b होल स्क्वायर क्या पढ़ा था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर a minus b होल स्क्वायर, इट वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी हियर, सिर्फ इतने पार्ट को आप लोग देखो, ये वाला पार्ट, क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में? कैसे, आई एम शोइंग यू। ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को आई कैन राइट हियर a स्क्वायर का a स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। अगर यहाँ पे 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर लिखते हैं, ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर और इसको डिवाइड करते हैं a स्क्वायर से, तो ये दोनों तो फाइनली कैंसिल हो जाता है और बचता कितना है, ओनली 2। तो यहाँ पे ये अगर a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, माइनस 2ab होता है। ओके, तो 2ab होने के लिए अगर यहाँ पे a डिवाइड बाई a करते हैं तो भी क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो ये -2 को वी कैन राइट हियर -2 इंटू a इंटू 1/a। ओके, फिर यहाँ पे बाकी एक्सप्रेशंस को कैरी डाउन कर देंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे नाउ सी
Now this is in the form of a square plus b square minus 2 into a into b. मतलब इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? We can write this as a minus b का whole square. a minus b का whole square. a minus b, यहाँ पे a का मतलब a square नहीं है, ये स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा हमारा a. यहाँ 1 by a स्क्वायर, ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड है, ओके, ये ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 by a. तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 1 by a का होल स्क्वायर. बाकी सारे टर्म को कैरी आउट कर देंगे, माइनस 3a प्लस 3 by a. ओके, नाउ सी, इन दोनों में से, क्या इन दोनों में से आपको 3 कॉमन दिख रहा है? कैन वी टेक 3 एज कॉमन? तो मान लेते हैं यहीं पे इसे कॉमन ले लेते हैं. ओके, इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं. यहाँ 3 को जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है? फर्स्ट वन में यहाँ पे मैंने लिखा है -3. ओके, तो -3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा. और इसमें क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा -1 by a. -1 by a क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे -1 by a बचेगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है a -1 by a और यहाँ पे भी a -1 by a. तो इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग कॉमन लेंगे. क्या कॉमन लेंगे? a -1 by a को. और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा a -1 by a. यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा? -3. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. यू कैन इवन रिमूव द ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट रिमूव करने से भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. So this will be the final answer of this question. Okay. So thank you for watching this video. We will meet you in the next series.